اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی السید النبی الامی العربی الہاشمی القرشی المکی المدنی الابتہی والتہامی السید البہی والسراج المضیء الکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعبد المدینہ العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین ورحمت للعالمین بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین الصابرین الشاکرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومناقبہم ومصائبہم وعظمتہم وولایتہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وهو أصدق القائلين قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني السلام الله عبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ناظرین محترم، مذکورہ آیہ کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو کا سفر مسلسل جاری و ساری ہے، اور آج ہماری گفتگو چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے. خالق کائنات رسول سے خطاب کرتے ہوئے یہ اعلان کر رہا ہے، اے رسول کہہ دیجئے میرے وہ بندے جنہوں نے اپنے نفسوں پر، اپنے آپ پر ستم کیا، زیادتی کی، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، کیونکہ اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، ذات اقدس الہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے. یقیناً خالق کائنات غفار ہے، غفور ہے. گناہوں کو اگر وہ نہیں بخشے گا تو پھر کائنات میں کوئی بھی کسی کی غلطی، خطا اور گناہ کو بخش نہیں سکتا. مگر اس نے قرآن کی مختلف آیات میں یہ واضح کر دیا، یہ روشن کر دیا، میں بخشنے والا ضرور ہوں، مگر بندوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ استغفار کرے، توبہ کرے، ورجع الیہ، اور لوٹ کر اس کی بارگاہ میں آئے، پھر ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزارے، تو پھر پروردگار عالم اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. عزیزان محترم، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، گفتگو کو پیوست کرنے کے لیے پھر دوبارہ عرض کر رہا ہوں، بیجا امیدیں کسی کو بھی کسی سے رکھنا نہیں چاہیے. امید صادق ہو، امید اسی سے رکھیں جن سے امید کرنا چاہیے. اگر دنیا میں ہمیں کسی سے امید ہے تو وہ خالق کائنات ہے. اس کے علاوہ
किसी से कोई रिश्ता ना हो। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते, इलाही हबली कमाल अल इनक़ता इलैक, परवरदिगार मैं दुनिया के हर रिश्ते से कमाल इनक़ता, मुकम्मल इनक़ता चाहता हूं तुझ तक पहुंचने के लिए। बाभरोसा अगर कोई जात है तो अल्लाह की जात है। तो लिहाजा उसने जिन शरायत को ऐलान किया, उन शरायत पर अमल करते हुए मोमिन को उस पर एतबार करना चाहिए, उस पर यकीन करना चाहिए, उस पर ईमान रखना चाहिए, उसी से उम्मीदें वाबस्ता रखे। वही बख्शने वाला है, वही हालात सुधारने वाला है। और वो बार बार ये ऐलान कर रहा है, रहमती वसिअत अला कुल्ल शै, मेरी रहमत हर शय पर वसी है। अल्लाह अकबर, ये एजाज है परवरदिगार आलम, ये करम है तेरा, तू रहीम है, तू करीम है। उसकी इतनी सिफात है, वो जब्बार भी है और वो गफूर भी है, और भी सिफतें हैं। लेकिन परवरदिगार आलम ऐलान कर रहा है, दुनिया की हर शय पर मेरी रहमत वसी है। इसका मतलब क्या है? कायनात में जितनी चीजें हैं उन तमाम चीजों पर अल्लाह की रहमत है। तो बंदे को घबराने की जरूरत नहीं। अगर तुमने गुनाह किया है तो आओ राह रास्त पर, तौबा करो, इस्तिग़फ़ार करो, फिर उसके बाद राह इलाही पर गामजन हो जाओ, फिर तुम पर रहमतों की बारिश होगी। उसकी रहमत हर शय पर गालिब है। परवरदिगार आलम गफूर भी है, रहीम भी है। यहां पर इन दो सिफतों का जिक्र है। मैं थोड़ी देर, चंद मिनट आपको सिफत रहीम पर लेना चाह रहा हूं कि वो गफूर है। गफूर यानी बख्शने वाला, सिर्फ बख्शने वाला नहीं है बल्कि रहीम भी है। तुमको माफ कर देगा, तुम्हारी गुनाहों को माफ कर देगा। बस ऐसा नहीं, फिर तुम पर रहमतों का नुज़ूल करेगा। अल्लाह अकबर, कितना रहीम है। कायनात को उसने रहमत के असास पर कायम किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान शुरू होता है उस अल्लाह के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है। सिर्फ कुरान की बात नहीं, उसने कायनात की खिलकत में अर्रहमान अल्लमल कुरान व खलकल इंसान, बल्कि वहां पर भी पहले अर्रहमान है। तो बताया इंसानियत का आगाज, कायनात का आगाज, कुरान का आगाज, ये सब रहमत की बिना पर है। ये दुनिया में रहमत ही रहमत है। लेकिन हमें इन रहमतों को देखने की जरूरत है, दर्क करने की जरूरत है। ये सब रहमतें हमारे लिए हैं। ये आसमान, ये रहमत है हमारे लिए। ये बारिश, अगर बारिश ना हो तो जमीन दाना नहीं उग सकती। ये बारिश रहमत है हमारे लिए। ये जमीन रहमत है जो हमारे लिए महद बनी हुई है, हमें अपनी गोदी में परवरिश कर रही है। ये रहमत है हमारे लिए। और ये जमीन सब्जीजात उगाती है हमारे लिए, गजाए फराहम करती है हमारे लिए। ये रहमत है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, यहां तक के परवरदिगार आलम मां के दिल में औलाद के लिए रहमत की दौलत न देता तो कोई मां अपनी औलाद से प्यार न करती। ये मां के दिल में बेटे के लिए जो प्यार है, ये रहमत है, इलाही रहमत। रहमत यानी मेहरबानी। मां मेहरबान है। परवरदिगार आलम ने अपनी सिफते रहमानियत और रहमत की अक्कासी वजूद मादर में किया है। यानी मां मजहरे सिफत इलाही है और वो सिफत रहमत है। जरा गौर करें, तवज्जो करें मेरी बात पर। आपके वजूद से, आपके बदन से ये बाल झड़ते हैं, क्या आप उन बालों को लेकर मोहब्बत करते रहते हैं? नहीं।
جبکہ وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے. ناخن کاٹتے ہیں، یہ ناخن کیا آپ اس سے پرورش اس کو گود میں لے کر محبت کرتے ہیں؟ نہیں. دفنانا ہے دفنا دیتے ہیں. اور اسی طرح خون نکلتا ہے، کیا خون کو کہیں پر آپ محفوظ کرتے ہیں اور اس سے پیار کرتے ہیں؟ نہیں. آپ ہی کا حصہ ہے، آپ کے بدن کا حصہ ہے، مگر خون آپ کے بدن سے جدا ہوا تو آپ کو اس سے کوئی محبت نہیں. ناخن جدا کر دیا آپ نے، کوئی محبت نہیں. بالوں کو جدا کیا، کوئی محبت نہیں. اسی طرح ایک ماں کے جسم سے جدا ہونے والا یہ بچہ اگر یہ بھی بالوں کی طرح ہو جائے، اگر یہ بھی ناخن کی طرح ہو جائے، یہ بھی جسم سے نکلنے والے خون کی طرح ہو جائے، ماں اس سے محبت نہ کرے تو اس بچے کی پرورش کیسے ہوگی؟ مگر پروردگار عالم نے اپنی صفت رحمت کو ماں کے دل میں جگہ دی تاکہ وہ بچے کی پرورش کرے. بے لوث خدمت کرتی ہے ماں. کیوں؟ اللہ نے ماں کے دل میں اس رحمت کو رکھا ہے. اللہ اکبر. پروردگار عالم رحمتیں عطا کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ علامہ اقبال نے جو شکوہ کیا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کی کاشانوں پر، بجلیاں گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر. نہیں. پروردگار عالم کی دو صفت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم. مفسرین اور شارحین نے لکھا ہے کہ الرحمن سے مراد اس کی رحمت دنیا میں سب کے لیے عام ہے. نہ مومن، نہ کافر، نہ منافق، نہ اپنا، نہ تیرا، بلکہ پروردگار تیرے ماننے والے پر بھی تیری رحمت ہے، جو تجھے نہیں مانتا ہے اس پر بھی تیری رحمتیں ہیں. رحمت سب کے لیے. یہ سورج ایسا نہیں ہے کہ اس کی روشنی سے صرف مسلمان فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ سب کے لیے ہے. اور اسی طرح دنیا کی یہ آکسیجن، یہ ہوائیں، یہ غذائیں کیا مسلمانوں سے، اس کے ماننے والے اور اس کی عبادت کرنے والوں سے مخصوص ہے؟ ایسا نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے. رحمان صفت رحمانیت سب کے لیے ہے. الرحیم سے مراد رحمت خاص جو آخرت میں صرف اور صرف مومنین کے لیے ہے. تو دنیا میں رحمت سب کے لیے عام ہے. تو عزیزان محترم، اس کی رحمتوں کو سمجھو، اس کی برکتوں کو سمجھو. ایک لمحے کے لیے بھی اس کی رحمت ہماری زندگی سے جدا ہو جائے تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اور وہ مانگو اس سے وابستہ ہو جاؤ، وہ رحمت کو نازل کرے گا. مگر ضروری ہے کہ سمجھو تو صحیح، اس کی معرفت کو حاصل کرو. وہ آپ کے مانگنے سے زیادہ عطا کرتا ہے. کتنا رحیم ہے. اس نے اعلان کیا، منجا کا جو بھی میرے پاس اگر ایک نیکی لے کر آئے گا اس کو 10 برابر نیکیاں دوں گا. نیکی ایک لے کر آؤ اور 10 برابر اس کا ثواب لے جاؤ. مگر یہ نہیں کہا کہ ایک گناہ، ایک سوء عمل لے کر آؤ اس کے 10 برابر دوں گا. نہیں، صرف حسنات کے لیے ہے. یہ رحمت نہیں تو اور کیا ہے. اصول کافی میں واقعہ موجود ہے، یا اگر اشتباہ نہ کروں کسی اور کتاب میں، جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، پروردگار تو نے مجھے اور میری اولاد کے لیے فرائض کو رکھا ہے، لیکن ساتھ میں اتنے شیاطین ہیں، جنات کی تعداد انسانوں سے زیادہ ہے. یہ شیاطین ہیں جو میری اولاد کو بہکائیں گے، ان کے لیے تو نے کچھ انتظام کیا؟ تو معبود نے کہا، اے آدم، تیری اولاد کے لیے اس سے کیا کم ہے کہ اگر یہ فکر گناہ کرو گے، اگر گناہ کرنے کی نیت کریں گے تو اس پر میں عذاب نہیں کروں گا. جب وہ گناہ کریں گے تب بھی عذاب نہیں کروں گا، بلکہ 7 گھنٹے 7 ساعت تک انتظار کرتا ہے پروردگار عالم کہ بندہ دوبارہ وہ پشیمان ہو جائے اور توبہ کر لے. 7 ساعت تک وہ اس کے گناہ کو اس کے نامہ اعمال میں لکھتا نہیں ہے. عرفا کہتے ہیں کہ 7 گھنٹے اس لیے کہا گیا کہ ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا فاصلہ 7 گھنٹے کا ہوتا ہے عموماً. اول وقت کو اگر لے لے تو بندہ کبھی نہ کبھی تو ایک وقت سے دوسرے وقت پہ سجدے میں جائے گا
और दुआ करेगा माबूद मेरे गुनाह बख्श दे। वो इंतजार करता है परवरदिगार आलम, गलती तो किया है मेरा बंदा, मगर सजदे में जाए और जब हाथों को उठा करके परवरदिगार बख्श दे, कुल्लु ज़म्बिन अज़नबतुहु, वो तमाम गुनाह जिसको मैंने अंजाम दिया उसको बख्श दे, तो परवरदिगार आलम की रहमत हर शय पर वसी है। और आगे फरमाता है परवरदिगार आलम, देखो जब लिख भी देता है, तवज्जो चाहता हूं, 7 घंटे के बाद भी अगर वो तौबा नहीं कर रहा है तब नामे आमाल में लिखता है, लेकिन लिखने के बाद भी जब तक वो जिंदा रहता है उसे ये छूट रहती है, पशेमान हो जा अपनी गुनाहों पर, लौट अल्लाह की बारगाह में। जब लौट आता है, तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, तो परवरदिगार आलम न सिर्फ मिटा देता है बल्कि उसकी जगह नेकियों को रख देता है, क्योंकि उसने तौबा किया। ये खुद तौबा करना इबादत है, उसने इस्तिग़फ़ार किया, ये इस्तिग़फ़ार करना इबादत है। उस गुनाह को मिटा देता है, उसकी जगह तौबा और इस्तिग़फ़ार के सवाब को रख देता है। अल्लाहु अकबर। हम जितना सोचते हैं उससे ज्यादा वो रहमतें ना हम पर नाजिल करता है। नादिर शुह दुर्रानी एक बादशाह था ईरान का, जो जालिम भी था। एक मर्तबा वो किसी मुल्क, शायद हिंदुस्तान, वो जब आ रहा था हमला करने के लिए, उसकी फौज के वो आगे आगे था, हमेशा वो फौज के आगे रहता था। एक मर्तबा देखा कि एक बच्चा कुरान लेकर जा रहा है, सहरा में कुरान लेकर कहां जा रहा है। उस बच्चे को बुलाया, कहा बच्चे बता कहां जा रहे हो। कहा यहां से बहुत दूर जा रहा हूं। क्यों? कुरान पढ़ने के लिए। अच्छा, कुरान पढ़ने के लिए जा रहे हो, कहां तक पहुंचे हो? उसने आयतें पढ़ी, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, यहां से मुझे पढ़ना है आज। नादिर शाह दुर्रानी ने अपनी फतह के लिए नेक फाल समझा, फौरन उसने एक सिक्का निकाला, उस बच्चे के हवाले किया। बच्चे ने उस सिक्का लेने से इनकार कर दिया। नादिर शाह ने कहा, बच्चे इस सिक्का लेने से क्यों इनकार कर रहा है? कहा मेरी मां मुझे डांटेगी। क्यों? वो कहेगी सहरा में तो कोई घर नहीं है, ये किसका पैसा तूने ले लिया, कहां से उठा लिया? मेरी मां राजी नहीं होगी, लिहाजा मैं सिक्का नहीं लूंगा। नादिर शाह दुर्रानी कहता है कि मां से कह देना कि बादशाह नादिर शाह दुर्रानी ने सिक्का दिया है। तो बच्चा बड़ा चालाक था, कहता है तब तो मेरी मां और भी मारेगी मुझे। ताज्जुब से नादिर शाह दुर्रानी कहता है क्यों मारेगी? बच्चा कहता है कि झूठ बोल रहा है तू। नादिर शाह दुर्रानी एक बहुत बड़ा बादशाह है, वो देता तो खजाना देता, एक सिक्का नहीं देता। बच्चे की इस बात को सुनकर बड़ा शर्मिंदा हुआ और उसकी जहानत पर का भी कायल हो गया। फौरन हुक्म दिया खजानची को। उसके बाद उस बच्चे से कहा फैला अपने दामन को, ये ले अब सिक्कों को। उसने सिक्के अता किए। यानी मतलब एक बादशाह से भी आम लोग ये तवक्को करते हैं कि बादशाह जब देता है तो आम लोगों की तरह नहीं देता है, आम लोगों से बढ़कर देता है। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, जब फकीर बड़े घर में जाता है तो बड़ी तवक्कुआत लेकर जाता है। यानी बादशाह देगा तो आम लोगों से ज्यादा देगा। तो अजीज़ान मोहतरम, दुनिया का ये बादशाहों से आप जब ऐसी तवक्कुआत लोग रखते हैं तो वो मालिक यौमुद्दीन, वो दीन और दुनिया का बादशाह परवरदिगार आलम, जितना तुम तवक्को रखोगे उससे ज्यादा वो अता करेगा। शर्त यह है कि मांगने का सलीका चाहिए। मांगो, सलीका यह है परवरदिगार आलम रहमतें नाजिल कर रहा है, मगर जरूरी है कि मांगने का सलीका आता हो। मांगने का सलीका यही है कि उसने हर दौर में एक मरकज रहमत को करार दिया। अल्लाह अकबर। रसूल भी भेजा तो रहमतुल लिल आलमीन। रसूल कौन है? रहमतुल लिल आलमीन, आलमीन के लिए रहमत। रसूल को आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा और यह मरकज रहमत है। अब उसकी रहमत को पाना है तो इसके वास्ते से वहां तक जाना है। अब जो रहमत के वास्ते से को छोड़कर अल्लाह से उम्मीद वाबस्ता किए हुए है तो वो उम्मीद काजिब है, उम्मीद सादिक नहीं है। तो हर दौर में
एक मरकज रहमत है, उसकी मारिफत जरूरी है, और वो मरकज रहमत वली खुदा है। रसूल के जमाने में मरकज रहमत रसूल है, अली के जमाने में अली और फातिमा है, हसन के जमाने में इमाम हसन है, इमाम हुसैन के जमाने में मरकज रहमत इमाम हुसैन है, आज के जमाने में मरकज रहमत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ है। इसीलिए इनकी वजह से ये दुनिया बाकी है, ये रहमतें बाकी है। जब ये चादर कसामे जमा हुए, जिब्राइल ने पूछा ये कौन है, तो परवरदिगार आलम ने यही तो कहा, ये न होते तो न आसमान का शामियाना लगाता, न जमीन की फर्श बिछाता, न हवाओं को चलाता, जो कुछ है इन आले मोहब्बत के मोहम्मद के मोहब्बत में है। तो ये मरकज रहमत है। अगर अपनी दुआओं को मुस्तजाब करवाना है तो इनको वास्ता करार दो। जो इनको वास्ता करार दिए बगैर दुआएं मांगेगा, तालिब रहमत बनेगा, उसकी उम्मीद काजिब होगी। हां, हुसैन से मांगो, हुसैन वो मरकज रहमत है। अल्लाह अकबर, क्यों ना हो हुसैन मरकज रहमत। इसलिए कि अगर मारिफत के साथ कोई हुसैन के गम में एक आंसू बहा देता है, उस पर जन्नत वाजिब हो जाती। एक आंसू का खतरा और जन्नत। यह मजहर रहमत इलाही है हुसैन। अल्लाह अकबर। जितनी फजीलत जिक्र हुसैन और जिक्र मुसीबत हुसैन के लिए है, किसी और इमाम के लिए नहीं मिलती है। कई इमामों से हदीस है, जो भी मेरे जद पर रोए या रुलाए उस पर जन्नत वाजिब है। खुद इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं, अना कतीलुल अबराह ला यज़कुरनी मोमिनुन इल्ला बका। मैं कतील अबराह हूं, मुझे रुला रुला कर ज़िबह किया गया। कोई भी मोमिन मेरा जिक्र नहीं करेगा मगर ये कि मोमिन आंसू बहाएगा। और इसी तरह न जाने कितनी ऐसी हदीसें हैं जिसमें मौला फरमाते हैं, क़यामत के दिन अज़ादारों की अज़मत को जानते हैं, वो क़यामत के दिन मुस्कुराते हुए जन्नत की तरफ जाएंगे। दुनिया आंसू बहाती रहेगी। जो दुनिया में हुसैन पर आंसू बहाएगा वो क़यामत में मुस्कुराते हुए जन्नत की तरफ जाएगा। ये मैं नहीं कर रहा हूं, इमाम फरमाते, एक आंसू। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके घर में एक शख्स मेहमान होता है, बहुत दूर से चाहने वाला आता है। शाम हो गई, मौला ने अपने घर में रुका लिया। मेहमान खाने में रात सो गया। निस्फ़े शब जब वो नींद से बेदार होता है, प्यास का गलबा उस पर होता है। प्यास की बिना पर पानी पीने के लिए जब उठता है, सुराही तक जाता है तो क्या देखता है, इमाम शिशुम मुसफ़े नातिक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे में सर है, ज़ारो खतार हो रहे हैं। परवरदिगार अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। एक मर्तबा सोचने लगा, परवरदिगार अगर ये तेरा बंदा है तो फिर हम कौन हैं? ये मासूम हैं, इनके दामने किरदार पर तर्क औला का धब्बा नहीं है, फिर भी तेरी बारगाह में एक गुनहगार की तरह गिड़गिड़ा कर आंसू बहा रहे हैं। ये इबादत है? तो फिर हम जो कर रहे हैं वो इबादत ही नहीं है। सो गया, पानी पिया और सो गया। सुबह हुई, आका की खिदमत में हाजिर होता है। कहता, आका कल रात मैंने आपकी हालत को देखा। अल्लाह अकबर, क्या मिराज इबादत है? आका, जिंदगी में मैंने ऐसी इबादत करते हुए किसी को नहीं देखा। तो इमाम ने पलटकर उससे कहा, तूने भी रात बहुत बड़ी इबादत की है। चाहने वाला था,
दस्त अदब को जोड़ा, कहा आका सिवाय सोने के मैंने कुछ नहीं किया। कहा नहीं, तूने भी बहुत बड़ी इबादत की है रात में। कहा आका मैं सिर्फ सोता रहा। इमाम ने कहा जब तू उठा, पानी पिया, प्यास पूछी, तो मेरे जद्द हुसैन की प्यास को याद किया। जो भी मेरे जद्द हुसैन की प्यास को याद करेगा पानी पीकर, वो अजीम इबादत है। अल्लाह नफसुल महमून लिज़ुल्मिना तस्बीहुन व हम्महु लना इबादा। जो महमूम हो जाए हमारे जद्द मजलूम की मुसीबत को याद करके, वो अजीम इबादत है। हाँ ज़ादारो, हुसैन वाक़ई कतीलुल अबरा है, जिन्हें रुला रुला कर शहीद किया गया। क्या मुसीबत कम थी हुसैन को? कभी औलो मोहम्मद के लाशों पर मातम करना पड़ा, कभी कासिम के पायमाल लाश को जमीन मख्तल से उठाकर लाना पड़ा। हाजादारो, आज की तारीख मैं हमेशा शहजादा अली अकबर के मसायब पढ़ता चला आया हूं। चंद जुमले और मजलिस को तमाम कर दूंगा। कौन अली अकबर? वो अली अकबर जिसको रवाना मक्तल करते हुए खुद इमाम हुसैन ये ऐलान कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा अशहिद फक़द बरअ इलैहिम गुलामुन अशबहुन नास खुल्कन व खल्कन व मंतिकन बेरसूलिक। परवरदिगार तू गवाह है ना। रोइए आज़ादारो, पुरसादो अली अकबर को, पुरसादो ज़ैनब को अली अकबर का, हुसैन को जवान बेटे का पुरसा देने के लिए आमादा हो जाइए। हाँ मैं जानता हूं आप घरों में बैठे हुए हैं, फर्श-ए-अज़ा सजी है, आज मुहर्रम की 6 तारीख है। आहिस्ता आहिस्ता हम आशूर से करीब हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। आज से एक एक अजीज ज़हरा के लिए रोना है। आज अली अकबर के लिए आंसू बहाना है। अली अकबर का पुरसा ज़ैनब को देना है। अली अकबर का पुरसा लैला को पेश करना है। अली अकबर का पुरसा हुसैन को देना है। परवरदिगार उस जवान को इस फौज जफाकार की जानिब भेज रहा हूं, जो गुफ्तार में, रफ्तार में, सीरत में, सूरत में सबसे ज्यादा तेरे नजबी से मुशाबे। और आगे फरमाते हैं, जब भी हम मुश्ताक़ ज़ियारत होते हैं तेरे रसूल के चेहरे को देखने के लिए, हम इस जवान के चेहरे को देख लेते। इतना प्यारा था। तभी तो रावी ये लिखने पर मजबूर हुआ, जब हुसैन से इजाजत लेकर अली अकबर खैमे में आए, खैमे में बीबियों से इजाजत मांगी, सबसे रुखसत हुए। जब खैमे से बाहर आ रहे थे तो रावी लिखता है, तो कभी खैमे का पर्दा उठता है और गिरता है। मैंने गौर से देखा, इतनी मर्तबा ये खैमे का पर्दा उठता है और गिरता है, ऐसा क्यों? तो मैंने गौर से देखा तो क्या देखा, अली अकबर जब भी इरादे रवाना मख्तल हो रहे थे, बीबियां अली अकबर से चिमट जाती थी। एक 4 साला बच्ची सकीना बढ़ के कहती थी, भैया मख्तल न जाइए भैया। जो भी सुबह से गया है वो लौट कर वापिस नहीं आया। हाज़ादारो, मख्तल का जुमला रावी कहता है, जब अली अकबर विदा होकर खैमे से निकल रहे थे, ऐसे महसूस हो रहा है जैसे भरे घर से जवान का जनाजा निकल रहा है। मैं रावी से एक सवाल करना चाह रहा हूं, रावी तू इतना बता दे, जब जिंदा अली अकबर खैमे से बाहर निकल रहे थे तो तू ये लिखने पर मजबूर हो गया कि जैसे लग रहा है जैसे भरे घर से जवान का जनाजा निकल रहा है। रावी इतना बता दे, जब भरे घर में अली अकबर की लाश आएगी उस मंजर को कैसे नकल करेगा? आज़ादारो,
अली अकबर रवाना मैदान हुए। एक मर्तबा हुसैन पीछे पीछे कमर को थामे हुए जा रहे हैं। अली अकबर ने एक आहट महसूस की, पलट कर देखा। क्या देखा? अरे ज़ईफ बाप कमर पकड़े हुए पीछे पीछे आ रहा है। अली अकबर घोड़े से उतरे, बाबा से कहा, बाबा आपने ही तो रुखसत किया, आपने ही तो विदा किया, ये पीछे पीछे आने का मकसद क्या है? बड़ा हसास जुमला हुसैन ने कहा, बेटा तुम साहिबे औलाद होते तो पता चलता कि औलाद को रुखसत करने के बाद बाप का क्या आलम होता है। लो आजादारो, हुसैन ने अली अकबर को रुखसत किया। अली अकबर मैदान में आए, जंग करते रहे। 3 दिन की भूख और प्यास में जंग की, बिलाकर जंग करते करते जब प्यास की शिद्दत हुई, अली अकबर लौट कर आते हैं, बाबा की खिदमत में आके कहते हैं, या अबता अल आतश कद कतलनी व तिक़लुल हदीद कद अजहदनी। बाबा प्यास मारे डाल रही है और लोहे की संगीनी अजियत दे रही है। बाबा क्या पानी की कोई राह है? अल्लाह अकबर। हुसैन ने कहा, बेटा बस मेरे मुंह में जबान रख दो। अल्लाह अकबर। क्या अली अकबर नहीं जानते थे कि बाबा के पास पानी की सबील नहीं है, मगर तारीख को बताना है मेरा बाबा भी कितना प्यासा है। एक मर्तबा अली अकबर ने बाबा के मुंह में जबान डाली। अल्लाह अकबर। कहा, बाबा आप तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। अल्लाह अकबर। जरा बताइए आजादारो, जवान बेटा बाप के सामने आकर सवाल किया तो भी पानी का सवाल, मगर हुसैन की मजबूरी, हुसैन पानी भी नहीं दे सकते। कहा, बेटा जाओ अब तुम्हें नाना ही सैराब करेंगे। लो आजादारो, दोबारा अली अकबर मक्तल में आते हैं। लड़ते लड़ते जब बनर गए आधा में घिर गए और वफाज ने हमला किया। एक जालिम ने एक ऐसा नेज़ा मारा, अली अकबर अरे घोड़े पर संभल न सके, जमीन पर आते आते आवाज दी, या बता अलैका मिन्नी सलाम। आजादारो, शेख जाफर शुस्तरी लिखते हैं, अली अकबर ने या बता अस्सलाम अलैका ये नहीं कहा, अस्सलाम अलैका। अस्सलाम का लफ्ज अगर पहले इस्तेमाल करे तो जवाब देना वाजिब हो जाता। शेख जाफर शुस्तरी कहते हैं, अली अकबर को पता है कि मेरा बाबा कितना प्यासा है। अल्लाह अकबर। प्यास से गले में कांटे पड़ गए हैं, लिहाजा बाबा अब जवाब सलाम भी नहीं दे सकता। लिहाजा अली अकबर ने सलाम ऐसे नहीं किया जिसका जवाब वाजिब हो जाए, बल्कि यूं किया, या बता अलैका मिन्नी सलाम। बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए बाबा। अब हुसैन का आलम यह है कि शेख जाफर शुस्तरी का जुमला सुन लीजिए आजादारो, जुमला अजीब जुमला है। शेख जाफर कहते हैं, अकबर की शहादत करबला में हुसैन की मौत है, इसलिए कि जैसे ही अब्बा अकबर ने हुसैन को आखिरी सलाम किया, अली अकबर की सदा सुनते ही हुसैन के जबान पर जुमला आया, अला दुनिया बादक लफा। बेटा अब तेरे पास जिंदगानी दुनिया पर खाक हो। अब हुसैन है, हुसैन की गुर्बत है, हुसैन है, हुसैन की बेकसी है, हुसैन है बेपिदरी है, आंखों का नूर भी गया, कमर भी टूट गई। अब हुसैन मक्तल तक जाए तो कैसे जाए? अरे अल्लाह अकबर भी ननीस कहते हैं, आवाज पिसर सुनते ही हालत हुई तगीर, चिल्ला के कहा है कलेजे पे लगा तीर। हाय बर्ची से वहां बर्ची से तड़पने जमीन पर तड़पने लगे वहां अकबर दिलगीर, बिस्मिल से तड़पने लगे यहाँ हजरत शबीर। था कौन उठाता अरे जमीन से उन्हें आकर उठकर कभी दौड़े तो गिरे ठोकरे खाकर। हुसैन का आलम ये है
تو میرے انیس کہتے ہیں آنکھوں کا نور گیا حسین کے زبان حال سے. انیس نے یوں ورثیہ پڑھا پیدر پہ آج نئی واردات ہے بیٹا, خبر نہیں مجھے دن ہے کہ رات ہے بیٹا. لہذا دارو چند جملے میں مجلس کو تمام کر دیتا. میں ہمیشہ یہاں پر ایک روایت پڑھتا ہوں, اسی روایت پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. عزادارو جب حسین علی اکبر کے پاس پہنچے اس سے پہلے زینب پہنچتی ہے. عزادارو آواز رقم الحسین, پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. ان آوازوں پر پروردگار جو رحمت نازل کرے, جو مصائب علی اکبر سن کر جن کے آنکھوں میں آنسو ہے, پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. ارے جب قافلہ کربلا سے مدینہ پہنچا, علی اکبر کے غم میں ہمیشہ سید سجاد روتے رہے. صاحب ریاض القدس کہتے ہیں ایک دن سید سجاد کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے, سوال کرتا ہے آقا کربلا سے متعلق ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. امام سجاد نے کہا میں شاہد کربلا ہوں, میں نے کربلا ان آنکھوں سے دیکھا, پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے. اس نے ایک سوال کیا آقا اتنا بتا دے میں نے سنا کہ کربلا کے میدان میں عاشور کے وقت ایک بی بی خیمے سے نکلی جو سرخ چادر پہنے ہوئے تھی. میں سوچا کرتا ہوں کیا یہ بات صحیح ہے کہ وہ سرخ چادر پہن کر جو بی بی نکلی, ارے اس عالم غربت میں مصیبت کے عالم میں وہ کون بی بی تھی جو سرخ چادر اوڑھ کر میدان میں آئی. اتنا سننا تھا. سید سجاد نے سر و سینہ پیٹا اور اس پوچھنے والے نے کہا میں نے کیا غلط سوال کیا. سید سجاد نے کہا نہیں تو نے سوال تو صحیح کیا مگر وہ چادر سرخ نہیں تھی, وہ بی بی کوئی اور نہیں تھی, وہ میری پھوپھی زینب تھی. جب آواز علی اکبر کی بلند ہوئی میرا بابا پچھاڑے کھا رہا تھا, زینب میری پھوپھی گئی. ارے اللہ اکبر, علی اکبر ایڑیا رگڑ رہا تھا, سینے میں نو کے لیزا میرے بابا نے آستین الٹی ایک مرتبہ یا علی کہہ کر نو کے لیزا کو نکالا تو میری پھوپھی جو سفید چادر اوڑھ کر آئی تھی, ارے جوان خون کا دھارا علی اکبر کے خون میں میری پھوپھی کی چادر سرخ ہو گئی. اب حسین ہے اکبر کے کلیجے کو اپنے کلیجے سے لگایا, پیر زمین کربلا پہ خط کھینچ رہے ہیں. ارے مقتل سے خیمے کی طرف جا رہے. ایک مرتبہ علی اکبر نے انگڑائی لی, اللہ اکبر, جوان بیٹے نے باپ کی گودی میں دم توڑ دیا. اب ضعیف باپ سے جوان کا لاشا اٹھایا نہ گیا. خیمے کا رخ کیا, آواز دیا بچہ